I welcome our special guest today. So when I was going through this, actually I'm not from Amritsar, but when I came to Amritsar, I heard a lot about FICCI Flow. FICCI Flow is, of course, they have all chapters everywhere. And then Fulkari organization. So I'm happy that you all are there with us today. So जब मैं ये लिख रही थी, like sir said कि कहीं conflict ना हो जाए, फुलकारी वाले भी आ रहे हैं, फिक्की वाले भी आ रहे हैं, तो कोई conflict of interest ना हो जाए. But when I was trying to write, I realized कि आज inner wheel हमारे साथ में है, which is the oldest. I also know because my mom-in-law is sitting there. She was the first woman in Firozpur to be elected as, the Inner Wheel Club. That was women Rotary Club ka, women ka wing tha. So I was just seeing कि कितना beautifully सबसे पहले मतलब ये organization form हुआ first time ever, I think in 1920s, and the theme was friendship. If I'm wrong, please correct me. Service, right, and understanding among women. मतलब बिल्कुल basic से, ठीक है? Then I come to FICCI Flow. FICCI Flow is of course again FICCI का जो flow है वो women wing है, and FICCI I hope everybody understands it is Indian Chamber of Commerce and Industry. इनका मोटो है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल एक्सीलेंस अमंग विमेन. सो आई वाज सीइंग कि किस तरह से एक कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल तरीके से विमेन की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, एंड फिकी फ्लो किस तरह से उसको टेक्निकली एंड डिजिटली अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ग्रो कर रहा है विमेन को, हाउ द विमेन एम्पावरमेंट इज ग्रोइंग. मैन प्लीज डोंट माइंड कि आज विमेन की हम बात कर रहे हैं. वी आर नॉट, वी कैन डू विदाउट यू. और द मेन मैन डॉक्टर भाटिया, उनको मैं सुपरसीड नहीं कर सकती. एंड देन वी हैव फुलकारी. ऑलराइट, द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स पंजाब. एंड डेफिनेटली हम इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करते हैं, ग्लोबली करते हैं, यू ऑलवेज नीड अ लोकल बॉडी where you have a kind of community. So I love your objective as well, to empower women in all aspects of society. Then you have education and enrichment, yes, networking, promoting, and philanthropy. And I think this last objective is common to all of us, even to us. So before I welcome you all, thank you so much. And a little introduction about Mind Spa Welfare Association Society. Rahul sir, can we have it? So this baby called Mind Spa Welfare Society was delivered by Dr. Bhatia. I mean, after his, so now he has 2 sons and 1 daughter. And huh? Yeah, sorry, sorry. Yes, thanks for correcting me, ma'am. That families who have patients of mental health issues, addiction, any kind of psychiatric disorder. As you understand that of Amritsar, you talk of Delhi, Pune, you talk of everywhere still. Okay, so how we are different from other hospitals is that, sir, ultimately family is the pivotal, family is the center. उसके बिना patient का इलाज नहीं हो सकता. So we have a huge fellowship of already more than 400 people. Are, as you can read, to psychoeducate, addiction, families. Rehabilitation जाता है और घर बर्बाद हो जाते हैं. Rehabilitation
person loses his leg and patients or family, any kind, be it an anxiety disorder, addiction, anything, हमारी लाइफ जीरो से स्टार्ट होती है. वी हैव टू गो बैक फॉर साइकेट्री लेवल पर किसी को ये मेडिसिन पर्पस after treatment, what next? So providing them occupation, of course, requesting all in presence here to collaborate with us in whatever way we can. Activate a pioneer who's ultimately it fellowship. Some of the active where we have sharing all women, children, mothers, sisters, जो go through कर रहे हैं with lot of issues. Next. I'm sure you already know that. I mean, every week from Monday to Sunday, we have free psychoeducation sessions here. जहाँ पे anybody and everybody can come and get psychoeducated. Of course, अगर ये बीमारियां genes, environment और personality की वजह से आती हैं, तो definitely it goes to our children as well. I mean, our sir says that our children have 5 times chances more to get into these illnesses. So we have created this Young Minds Club, जहाँ पे बच्चे अपना trauma sharing, trauma healing करते हैं. I mean, they share with each other कि अगर उनके घर में एडिक्शन में फादर थे या पेरेंट्स लड़ते हैं या किसी को डिप्रेशन है, बाइपोलर है, तो एक बच्चा क्या गो थ्रू करता है. सो दैट प्रिवेंटिव साइकेट्री की मदद से बचपन से ही उनका प्रोग्राम इनबिल्ट हो जाए, so that they get the coping mechanism to survive in the world. You're a psychology student, I can see that. ठीक है, all right. Next, please. And then facilitating occupation. So in the first picture we have Meenakshi. She got her husband's treatment done for addiction. Now she is a principal of a school. We have a recovering addict, I mean, who's working in Hermitage. Then we have Pavani, who got her husband's treatment for addiction. Then we have our children, Dr. Abhay, I mean, another child who's a nurse. So now they are rehabilitated in the society. Next, please. I think that's the last one. So celebrating recovery is very important. Of course, आज World Schizophrenia Day है. Of course, एक हॉस्पिटल खुशी वाली जगह नहीं हो सकती, बट एंड ऑफ द जर्नी आप रियलाइज करेंगे कि हमारी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई एंड हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे. एंड नेक्स्ट प्लीज. तो जब ये इलनेसेस हमारे घर में आती हैं, तो चाहे कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, वेकेशन है, यू वोंट बिलीव कि हम आई मीन हमारे अंदर ट्रॉमा आ जाता है अगर एक फेस्टिवल आ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग एसोसिएटेड विद अल्कोहल, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद ड्रग्स, एंड देन यू नो वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट आवर लाइफ इन एनी वे. तो ये रिकवरी मोमेंट्स हैं वेयर husband wife are going on vacation. The third one is really amazing because they were newlyweds and husband ka treatment hua, and the first Karwa Chauth husband was totally intoxicated. This is the first Karwa Chauth they celebrated.
So these are all, I mean, real stories. Ye Jasprit sir hai one of the oldest family support group in recovery. Recently, his daughter got married and she's gone to Australia. She's going to Australia. Next, please. Then these are some of the pictures of happy families here. Next. These are again fellowship celebration. Next. And the success stories going on. So this was a miniature vision of, actually a vision, a far-sighted, foresighted vision of Dr. Bhatia, which is ultimately coming true. Thank you so much, sir, about that. Thank you. I put it so well, yes. I put it so well because I have 2 patients in my family. So that is why this, $1 million smile also on the face. All right. So we move on now. But before that, let us invite Mona ma'am, right? And हमारे Sticky Flow के we have members of Inner Wheel as well. They are on the way. All right. So is Hanji sir, dust storm. Yes. Ma'am, pehle we'll light the lamp first. Yeah, Fulkari members. Yes. You are from Fulkari. Yes. Yes. She's my elder sister. Yes. Yes. That is why I came this side. No, you come with us. आप भी आइए ना. Sir, please. You please. Ma'am, please come. और president. देखो बाहर हेल स्टॉर्म मतलब जबरदस्त स्टॉर्म चल रही है. Because the energies are such. Yeah, the energies are such inside. This is an indication, the storm. Thank you so much. Energies are potent. Thank you. I saw this name oil. ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੀ ਸੀ it is a chair regarding the plastic waste. I will do. Achha. Okay. I am Meenakshi Khanna. I am president of Fulkari Women of Amritsar. First of all, I welcome you all and thank you, Dr. Bhatia, for organizing this event on the Schizophrenia Day. As most of us, or at least me, I was always under impression that this is a severe mental condition which is not treatable. So we could see it in headlines, we could see it in the news or in the textbooks. After hearing her, we see that it is treatable. We need to be empathetic towards the person affected, and of course, the medicines are always there, and doctors are always there to support. So I think we should keep talking to them. We should keep listening to them and be kind to them. And we can reach the goal where the person can recover from it fully. So I'll take another 2 minutes. Okay. I'll take another 2 minutes of yours. I want to introduce that Fulkari is starting an initiative, E-Pravartan, that is recycling of e-waste. So we are collaborating with a recycling company, Threco, that is an LLP company from Bombay. They will be coming here and picking the e-waste collected by us to Bombay and Mumbai, and they will recycle. They are government approved organization and they recycle to the nanoparticles of the e-waste. So we want, when we started this initiative, the most common question was coming to us, why not Kabadiwalas? Because they are giving us money and we are not. So we told them that when we give to Kabadiwalas, they don't dispose it responsibly.
whatever they want to dismantle it or they burn it, and then the things go to the landfill, and in turn they pollute our environment. So that they might give you few hundred rupees or maybe 1,000 rupees after when you sell it. So you take that as a donation for the future generations, that we are donating this much amount for the environment we are building for the future generations. And I think today only I was reading that India generates 5.2 million tons of e-waste, and just 5% is recycled responsibly. Rest all goes in the environment. So it is a humongous problem. I think everybody should come together and join hands with us so that we can make this earth a livable planet again. Definitely. हाँ, I tell you, हाँ, अच्छा, okay. E-waste में हम क्या क्या चीजें हैं? हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, be it a TV और वॉशिंग मशीन है और आपके मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, वो सब इसमें आएंगे, बिकॉज उसमें भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है. और इलेक्ट्रॉनिक सारे जैसे आपके फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, जो भी इन चीजों से, चार्जर्स हैं, इवन वायर्स, इवन योर वायर्स, they come all under the e-waste. Right. Yeah. Batteries, of course, and your power banks, they all come under the e-waste. So you have to dispose them of in a responsible way. So we are having a collection drive from 1st to June at Cambridge Junior School. You can, from 12 to 5 p.m. in the evening, you can come and just give us your this. We will provide you a certificate of appreciation by Threco Company and Fulkari. This is one mode of doing it. There is another mode. If there is a big organization, as Dr. Saab has his hospital, they can do at their center, or either give it to us, or in case it is big enough, we can also come and collect it from you. So you can take part in both the ways, individually or through the organization. Right. So I will share everything with Dr. Bhatia, and I think he will circulate with everybody. Sure. And I'm looking forward to each one of you to contribute, whether आपके घर में कोई छोटा थोड़ा सा भी है, just come और उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबली उसको रिसाइकल करने के लिए उसको हमें दे मिक्सी के दीजिए. ब्लेड्स तो टूटते ही रहते हैं. मतलब हम उससे क्या है कि Yes, yes. Okay, Nitin. Our list is there. there's lots of it. आप देखोगे आसपास बहुत चीजें हैं. मैं सर को भेजूंगी, उसमें टोटल लिस्ट है हमारे पास कि क्या क्या चीजें आप हमें दे सकते हैं. So I'm looking forward your support, Dr. Saab, and from the community at large. Sure. Thank you. Thank you so much. So बाहर e-waste से now we go back to the waste in our brain, the toxics in our brain, which is ultimately causing the disorders, जिनकी वजह से जो toxicity हमारे दिमाग में. I mean कितनी अजीब बात है ना, बचपन से हमें बॉडी की सफाई सिखाई जाती है, स्पास में, सैलून्स में जाना, बट ये ब्रेन को भी सफाई चाहिए, वी आर नॉट टॉट. तो ये फील्ड ऑफ साइकेट्री और साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे एक पेशेंट के साथ और फैमिली के साथ कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड वी आर आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारा जो पूरा स्टाफ है, इट्स लाइक अ फैमिली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द डायरेक्टर ऑफ आवर हॉस्पिटल and the senior most psychologist here who's been working here for last 17 years, who is a perfect blend of boundaries, administration, assertiveness, and the same time compassion towards the patient. Dr. Anchal, please join. Thank you, Namrata ma'am. Namrata ma'am is a very strong lady and she has been doing a lot for the work of this hospital and this society since years. No, she is, you can all see ma'am. You can all see what she can do. So today we are going to talk about schizophrenia. 24th of May is always celebrated as World Schizophrenia Day. And we all must have heard about this disorder
somewhere or by somebody, or must have seen some patients in our life. But do actually we understand what schizophrenia is? So we are going to elaborate it in detail regarding that. And I'll try to use more of Hindi language because this is going to be live and it has to go to masses. So Hindi language would be preferred more, ma'am. So, schizophrenia is a chronic disorder, a serious disorder which actually affects the thought, perception and behavior of an individual. मतलब कि जो एक पेशेंट महसूस करता है, जो उसको सोच आ रही है और जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है, वो टोटली डिस्टॉर्टेड हो जाता है. पेशेंट रियलिटी से एकदम कट ऑफ हो जाता है. पेशेंट अपने आप को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाता है और वो अपनी एक सोच की दुनिया में सीमित रह जाता है. जनरली ऐसे पेशेंट्स बहुत देर तक, इनिशियली कुछ देर तक फंक्शनल भी रह सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी परफॉर्म करते करते, लेकिन अपने आप से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं. पर जब ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है, दे आर नॉट फंक्शनल एनीमोर. फिर उनको हर चीज में, हर नॉर्मल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. अपने आप को संभालना, अपनी लाइफ में बेसिक काम करना, ब्रश करना, नहाना धोना भी पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट एज बहुत अर्ली एजेस में भी पाया जाता है. मेल्स में इसका ऑनसेट एज 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक रहता है और फीमेल्स में जनरली 25 to 35 का ऑनसेट है. इसके अलावा बच्चों में अर्ली ऑनसेट का एज 13 साल की उम्र से भी जल्दी हो सकता है. मेजॉरिटी में टीनेजर्स में अगर स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करें तो 18 साल की उम्र के स्किज़ोफ्रेनिया पाया जा सकता है. कभी कभी बुजुर्गों में सारी उम्र बहुत बढ़िया निकल जाती है, दे आर वेरी फंक्शनल, दे आर वेरी जोवियल, बहुत बढ़िया से जिंदगी बिताई है. 60 साल की उम्र के बाद सडनली स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट हो जाता है और वजह फैमिली ढूंढती रहती है कि ऐसा हुआ क्या, क्योंकि फैमिली का तो यही आंसर होता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो टेंशन ही नहीं दी, हमने तो कोई परेशानी नहीं दी, हम तो बहुत बढ़िया से रख रहे थे. बट रीजन इज नॉट ओनली टेंशन. There are multiple factors which can cause or lead to schizophrenia, and researchers tell us कि not single factor can be identified as the reason for schizophrenia. There are multiple factors जिसमें आपकी genes, आपका environment, आपका आसपास का setup, स्ट्रेस कैपेसिटी और ये सब कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन मेजर तौर पे जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें जो सबसे बड़े रीजंस हैं स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें ब्रेन का बायोकेमिकल डिसऑर्डर, बायोकेमिस्ट्री में ऐसी कुछ चेंजेस आ जाती हैं जिसके कारण पेशेंट बिना वजह से इस बीमारी में लैंड कर जाता है. हमारे दिमाग में बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं. बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन जो मेजर रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया में उसको हम डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. डोपामिन ऐसा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नॉर्मल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन ऑलवेज बी चेयरफुल, वी कैन बी हैप्पी, वी कैन हैव द फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ एंड वी कैन एंजॉय आवर लाइफ इन अ ग्रेटर वे. लेकिन अगर इसी डोपामिन की मात्रा दिमाग के कुछ हिस्सों में नॉर्मल से बहुत ज्यादा या कुछ हिस्सों में कुछ कम हो जाए तो हम नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ बढ़ जाएंगे. तो उन केसेस में स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, या अगर उनमें वल्नरेबिलिटी हो तो इसके लक्षण बढ़ जाते हैं. अगर हम सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस अब्यूज में कैनबिस, एलएसडीज और एम्फेटामाइंस एक मेजर रोल प्ले करते हैं और ट्रिगर करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का. और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो कैनबिस यूज करते हैं हमारे पास आके, दे लैंड अप इनटू स्किज़ोफ्रेनिया. नाउ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या हैं? इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या है. स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 तरह के लक्षण पाए जाते हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कोग्निटिव सिम्टम्स. पॉजिटिव सिम्टम्स इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं जिसमें पेशेंट हेल्यूसिनेट करना स्टार्ट कर देता है. देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डेल्यूजन्स व्हिच ही इज फेसिंग. पेशेंट सेल्फ मटरिंग, सेल्फ स्माइलिंग, अकेले रहना इस तरीके से, या सडन आउटबर्स्ट ऑफ एग्रेशन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को. सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हर एक को लेकर. आपके क्लोज्ड वन, आपके अपने माँ बाप भी आपको आपके पराये लगते हैं और सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं. इस तरह के पॉजिटिव सिम्टम्स रहते हैं. नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट बिल्कुल विड्रॉ कर लेता है अपने आप को. ही इज टोटली इनटू हिमसेल्फ, ही स्टार्ट स्टेइंग अलोन, अकेला हो जाएगा, इमोशनल, टोटल कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी. वही बच्चा बहुत जोवियल और बहुत इंटेलिजेंट होता है, वही बच्चा एकदम से कमरे में रहना शुरू हो जाता है. सडनली अपना पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का कोई ध्यान नहीं रहेगा. ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं मैम जिन्होंने ब्रश किए महीने हो गए हैं, नहाए नहीं है, बाल नहीं बनाए हैं, बाल नॉर्मल जटाओं में बदल जाते हैं. वी हैव टू कट देयर हेयर टू गेट देम नीट इनटू अ प्रॉपर शेप. इस तरह की हालात में पेशेंट्स पाए जाते हैं. कोग्निशंस की अगर बात करें तो कोग्निशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. पेशेंट इज नॉट एबल टू फोकस
मतलब he can't pay attention while he is studying, so there is decline in the studies as well. वही बच्चा जो टॉपर होता है वो suddenly drop में चला जाता है. So these are certain types of things which are found in schizophrenia. ये बीमारी अगर हम कहें तो 1% of population में पाई जाती है. सुनने में 1% इतना ज्यादा नहीं लगता, but if you try to analyze it stats के हिसाब से तो हर 20 करोड़ के हिसाब से आपके पास कितना मतलब 1 करोड़ के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन है जो स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित है. तो इट इज अ लार्ज नंबर, बट द पेन इज कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर सोसाइटी, बहुत साल पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और हमारे पास इतनी लेट पहुंचते हैं जब तक ये बीमारी क्रॉनिक हो चुकी होती है. क्योंकि सदियों से ऐसा चलता आ रहा है ना कि मेंटल हेल्थ को तो लोग प्रायोरिटी देते ही नहीं है, और स्किजोफ्रेनिया जब कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे आवाज आ रही है, मुझे चीजें दिख रही हैं, तो हमारी सोसाइटी सबसे पहले क्या सोचेगी, पागल है या फिर कुछ हो गया, किसने जादू कर दिया है, कोई बाबे के पास ले जाओ, कोई पूजा करवा लेते हैं. और हाँ, और सालों तक ये चलता है मैम. इट इज एक्चुअली डन. जब पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं वो ये सब चीजें प्रोसीजर से होकर ही आते हैं, एंड इट इज हैपनिंग टिल डेट. इट इज नॉट दैट कि अब हम एजुकेटेड हैं तो नहीं करती. वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स विद द फैमिली टू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि ये ओपरी चीज नहीं है, बिकॉज दे कम एंड टेल कि ओपरी हवा है मैम. वो ऐसा, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन रहता है, मतलब उनको लगता है कोई छू रहा है, तो फिर ऑब्वियसली फैमिली को ऐसा ही लगता है कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई है ही है, इसके आसपास कोई चलता है, इसको तो महसूस होता है, कोई चीज ही है. तो इट बिकम्स रियली टफ फॉर द फैमिली ऑल्सो. इट इज पेनफुल फॉर देम ऑल्सो टू सी देयर पेशेंट्स इन दैट स्टेट. So I have a beautiful team with me, and we will try to show you it in a psychodrama form so that you can understand it more in depth. So I would like to invite Vanshika ma'am, psychodrama के head हैं मैम हमारे, अमनदीप मैम फैमिली काउंसलर, and Anthony sir please come, हमारे nursing staff के head please come so that we can understand in detail. इसमें वंशिका मैम, शी इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ पेशेंट. We have taken them from our real life cases. वंशिका, वंशिका, वो देख, सभी लोग तेरी तरफ देख रहे हैं. मैंने कुछ नहीं किया है. उनको सब पता चल चुका है. नहीं, क्या पता है कि तू कैसी लड़की है. मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ. मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ. तू बहुत बेकार लड़की है. नहीं नहीं, तुमको हो जो बोलने वाले, मैं अच्छी लड़की हूँ ना. मैं कोई अच्छी लड़की नहीं, उन सबको पता चल चुका है. मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ. वो देख, तू चुप रहे. कौन? वो देख, तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बेकार है, नहीं मम्मी, कभी कुछ नहीं कर सकती. तो बोलो. तेरे बारे में बुरा बोलिए तो तेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं. दोस्त है वो, मम्मी को प्यार करती है. तेरे को कोई प्यार नहीं करता वंशिका. तो एक काम कर, ये बॉल पड़ा ना तेरे सामने, इसे उठा और उन पे मार दे. नहीं, मैं कैसे, वो मेरे तेरा कोई दोस्त नहीं है वंशिका, बस मार दे. वंशिका मार. शाबाश. अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है वंशिका. जैसा मैं वैसा ही करती जाया कर, क्योंकि तो कहली तो कुछ कर सकती नहीं है. तेरे में कुछ नहीं है वंशिका. So that is actually very intense if you try to feel. ये एक ऐसा पेशेंट है जिसको एक्टिव ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं, जिसको आवाजें आ रही हैं और वो आवाजें कंटिन्यूसली उसके साथ रहती हैं जहां भी वो चली जाए. इट इज नॉट दैट कि चेंज ऑफ प्लेस कैन चेंज द सिम्टम्स. उसको और कमांड करती हैं कि तुम्हें ये करना है. अगर पेशेंट ये चीज को नहीं कमांड को फॉलो करता तो उसकी एंग्जाइटी लेवल्स, उसका फियरफुल फीलिंग इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको ऐसे लगता है ये चीज उसका नुकसान कर सकती है. या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मुझे ये चीज ना फॉलो की गई तो शायद ये चीज मेरी फैमिली का नुकसान कर देगी. इट कैन बी एनी थॉट, इट कैन बी एनीथिंग व्हाट एवर कम्स टू द माइंड ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट प्लीज.
गुड मॉर्निंग वंशिका। नाटक मत करो मेरे सामने। क्या हो गया वंशिका? बस करो। सब मिले हो ना? मम्मा पापा भी आपके साथ मिले हैं, मुझे पता है। मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना इतनी अच्छी। नहीं, कोई फ्रेंड नहीं हो तुम मेरी। गवर्नमेंट के लिए चलो काम बैठ के बात करते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम मैं करती तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी दोस्त से प्यार करती हूँ वंशिका। हूँ। मुझे टच मत करो, दूर रहो मेरे से। मैंने देखा था चलो आराम से बैठो। वहां पे सीलिंग में ना रेड डॉट, वो कैमरे का डॉट है ना, रिकॉर्ड कर रहे हो ना वंशिका तुम वो मुझे? सिर्फ तेरे दिमाग की एक सोच है, तेरी बीमारी का एक पार्ट है, तुम्हें पता है ना? मैं झूठ बोल वंशिका? रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं तो मेरे झूठ पे विश्वास क्यों नहीं करता कोई? मैं विश्वास नहीं, मेरे को टच मत करो। बैठ के बात करते हैं ना। मेरे ब्रेन, तुम्हें पता लग रहा है ना मैं क्या सोच रही हूँ? तुम देख पा रहे, सब देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। मैं कोई नहीं देख पा रहा वंशिका, ये तेरी बीमारी का एक थॉट है। नहीं, ऐसे चल कैसे? बैठ के बात करते हैं। ऐसे मैं झूठ आराम थोड़ी बोल से, रही हूँ। आराम से शांत हो जाओ वंशिका, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं झूठ थोड़ी शांत हो जाओ वंशिका, शांत हो जाओ। कुछ नहीं है वंशिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ है, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मम्मा पापा सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वंशिका। ये तुम्हारी बीमारी का एक थॉट है और कुछ नहीं है, बहुत डर। कुछ नहीं है वंशिका, शांत हो जाओ, शांत। In this clip, the patient is depicting the symptoms of paranoia. पेशेंट का पैरानोया सस्पिशियसनेस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, हर चीज को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने आसपास के हर जन पे उसको शक आता है। कभी कभी इस एक्सटेंट तक कि उसको ये लगता है फैमिली खाने में कुछ डाल देगी। डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्ट है, जिसमें उसको ये पता चल रहा है कि उसको ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो सामने वाला पढ़ पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा सबको पता चल रहा है और वो इसका मिसयूज कर लेंगे या उसके अगेंस्ट प्लॉट करके कुछ भी प्लान कर सकते हैं। सो कंटिन्यूअस फियर जो है वो पेशेंट के दिमाग में है। ऐसे पेशेंट कभी कभी सेल्फ डिफेंस में या तो सामने वाले का नुकसान कर जाते हैं या कभी कभी खुद भी इस एक्सटेंट तक चले जाते हैं कि उनका काफी नुकसान हो जाता है। दे कैन लैंड अप इनटू सुसाइड, या कभी कभी वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। और कितने सालों तक हमारे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बिना बताए सारे अपने प्रूफ्स छोड़कर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि सारे मेरा नुकसान कर रहे हैं और मुझे कोई मार सकता है और सब मुझे ही देख रहे हैं। So the pain, you can feel what the patient is going through continuously 24 hours. They are not able to sleep. They are not able to do any basic activity of their life. Okay. That's it. ऐसे केसेस में फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि क्या करें और कैसे इस पेशेंट को संभाला जाए, क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा है। और ये बीमारी घर देखकर नहीं आती, आपकी एजुकेशन देखकर, आपका स्टेटस देखकर नहीं आती। तो बहुत बारी फैमिलीज को सालों लग जाते हैं छुपाते हुए कि अगर ये हम बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि पागल है। पागल इज नो वर्ड। अगर हम रिस्पेक्टफुली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें तो दीज पीपल हैव इक्वल राइट टू गेट ट्रीटेड, इनफैक्ट मोर, बिकॉज वो तो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे। बाकी इंसान तो अपनी हेल्प के लिए मदद मांगते हैं, ये तो अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाते। सो एज अ सोसाइटी हमारा रोल ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एज अ फैमिली कि हम इनकी हेल्प करें, इनको सपोर्ट दें, इनको अनकंडीशनली लव करके ट्रीटमेंट पे राइट टाइम पे राइट प्लेस पर लेकर जाए, बिकॉज दे हैव द राइट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड दे कैन गेट ट्रीटेड मैम। स्कीजोफ्रेनिया बीमारी को सालों लगे। इनफैक्ट इट वाज ओनली इन द 20th सेंचुरी जब स्कीजोफ्रेनिया बीमारी को एक बीमारी होने का ओहदा मिला। इससे पहले तक इसको बीमारी नहीं गिना जाता था। इससे पहले तक सिर्फ पेशेंट्स को सेग्रीगेट कर दिया जाता था, चेन्स में बांध दिया जाता था, कुर्सियों पे बांधकर पत्थर मारे जाते थे या एक्सटॉर्शन के लिए ले जाया जाता था पंडितों को बुलाकर या कुछ भी इस तरीके के प्रोसीजर करके, बस या तो उनको खत्म करने का या फिर सारी उम्र अकेले कमरे में बांध कर रखा जाता था। ये गो थ्रू होते हैं हमारे स्कीजोफ्रेनिया पेशेंट्स। दो टाइम इज चेंजिंग, साइंस हैज डेवलप्ड अ लॉट, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस बीइंग डन, बहुत अच्छी मेडिकेशन आ गई है एंड वी आर केपेबल इनफ टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर इन अ ब्यूटीफुल वे। एंड हमारा हॉस्पिटल इस फील्ड में मोर देन 40-50 ईयर्स से है। इट स्टार्टेड फ्रॉम बड़े सर जिनको हम डॉक्टर JPS भाटिया के फादर डॉक्टर अजीत इंदर पाल सिंह भाटिया, जिन्हें हम बड़े सर कहते हैं, ही लैंडेड अप इनटू द फील्ड ऑफ साइकियाट्री एंड ही वाज देयर इन विद्यासागर हॉस्पिटल फॉर ईयर्स। And later when Dr. JPS Bhatia came, so this hospital came into the field and then तब से ये प्रोसीजर चल रहा है और इनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द मेंटल हेल्थ is going on because sir is very much dedicated just to bring the families into that
फेज कि आप जब तक नहीं समझोगे पेशेंट नहीं ठीक हो सकता. इट इज नॉट द पेशेंट हु इज डूइंग इट डेलिबरेटली, इट इज द फैमिली हु नीड्स टू सपोर्ट द पेशेंट कि हाँ हमारा बच्चा ठीक हो सकता है. एंड आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर कि किस तरह से सर इस मेंटल हेल्थ की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस ट्रीटमेंट्स हम इस बीमारी को ठीक करने के लिए लेकर आ रहे हैं. सर हमारे भाटिया हॉस्पिटल की थर्ड जनरेशन डॉक्टर JPS भाटिया के दोनों बेटे एंड डॉटर इन लॉ, दे आर ऑल्सो इन टू द सेम फील्ड. दे आर परस्यूइंग देयर एडवांस साइकेट्री MD इन UK एंड इस समय वो वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं. So we are waiting eagerly for them to land, to come back to India and help us in this field, sir. Now I would like Arsh to please come. She is the clinical psychologist here. Now she will elaborate you that how we actually diagnose schizophrenia and what interventions we are giving here so that you can also have awareness regarding it. Thank you. थैंक यू सो मच आंचल मैम. आंचल मैम ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि सिजोफ्रेनिया क्या है, क्या क्या सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया में होते हैं. एज वी ऑल नो कि साइकेट्री एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, हॉलिस्टिक अप्रोच से हम काम करते हैं. तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला रोल जो चीज़ प्ले करती है वो है हमारी मेडिकेशंस. जैसा कि हमें मैम ने बताया कि केमिकल डिसबैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम अक्कर होती है. तो मेडिकेशंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि विदाउट मेडिकेशंस हम थेरेप्यूटिकली भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. सो पहले मेडिकेशन एंड देन जैसे जैसे सिम्टम्स सबसाइडेड होते हैं तो साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट हम फर्दर प्लान करते हैं. तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, केस हिस्ट्री जिसपे हम उनकी डिटेल में सिम्टम्स समझते हैं, साइन समझते हैं, ऑनसेट समझते हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि इस कोर्स का प्रोग्नोसिस कैसा है, पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, कितनी जल्दी इनको काउंसलिंग या थेरेप्यूटिक पोजीशंस पे डाला जा सकता है. सो डिटेल हिस्ट्री कम्स विद फैमिली हिस्ट्री, सब्सटेंस हिस्ट्री. जैसे कि मैम ने बताया कि कभी कभी सब्सटेंस की वजह से भी ये सारे सिम्टम्स अकर कर सकते हैं. तो डिटेल में हम लोग पहले हिस्ट्री लेते हैं. देन इट्स कम विद द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. जब पेशेंट हमारे पास आता है, क्या स्टेटस होता है पेशेंट का, उनका थॉट कंटेंट किस तरीके का है. जैसे कि मैम ने बताया हेलोसिनेशन. अब हेलोसिनेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. कभी कभार हेलोसिनेशन इतनी वॉइसेस कमांडिंग देती हैं, दे विल टेल अस कि सुसाइड कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो. सो हमें कंटेंट जानना बहुत जरूरी होता है. उसके लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, पेशेंट का बिहेवियर, पेशेंट का थॉट पैटर्न, पेशेंट कितनी इनसाइट, कितना पेशेंट अवेयर है कि उसे ये प्रॉब्लम है, फिर ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे फर्दर. पेशेंट किस लेवल ऑफ इनसाइट के साथ हमारे पास आया है, पेशेंट की जजमेंट क्या है रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग पर्सनल एस्पेक्ट, रिगार्डिंग सोशल एस्पेक्ट्स. तो ये सारी चीजें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कवर करते हैं. फिर हमारे पास आती है साइको डायग्नोस्टिक टूल. साइको डायग्नोस्टिक टूल्स कुछ इस तरीके के टूल्स हैं जो एविडेंसली डिजाइंड है टू नो द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स. So we have, further psychodiagnostic tool like brief psychiatric rating scale, PANASS, positive and negative symptom scale. ये सारे scales हम तब यूज करते हैं जब हमें डिटेल में इवेल्युएट करना है. अब सिजोफ्रेनिया है, क्या उसके सिम्टम माइल्ड है, मॉडरेट है, कि बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे है, क्या वो क्रॉनिक बन चुके हैं. ये सारे साइकोडायग्नोस्टिक टूल की हेल्प से हम ये सारे सिम्टम्स को फर्दर इवेल्युएट करते हैं. देन इट कम्स विद द फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. अगर हमें लग रहा है कि कोई और कॉज भी हो सकता है इस चीज का, जैसे कि मैम ने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. इट कैन बी ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी, कोई एक्सीडेंट के बाद सिम्टम ट्रिगर हो गए, कोई सर्जरी के बाद पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स अकर हो. तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. MRI, CT स्कैन, EEG, ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीजें भी फर्दर यूज की जाती है टू इवेल्युएट इन डेप्थ. नाउ इट कम्स टू द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. अब साइकोथेरेप्यूटिक एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं. So basically it start with the supportive therapy, कि किस तरीके से हम पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, केयर गिवर्स पे इतना बर्डन पड़ जाता है कि दे स्टार्टेड गिविंग क्रिटिकल कमेंट टू द पेशेंट, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, हम अपना काम काज छोड़ के बैठे हैं, मैनेज करना पड़ रहा है. सो सपोर्टिव थेरेपी सबसे प्रायर नीड है किसी भी पेशेंट के लिए when they are coming with such psychological issues. Then we can start with CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. सीबीटी इस तरीके से काम करती है कि कैसे पेशेंट के थॉट पैटर्न, कैसे उनकी थिंकिंग एस्पेक्ट्स को हम चेंज करके बिहेवियरल में पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकते हैं. तो उनमें हम उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पे काम करते हैं, उनकी अटेंशन पे, उनकी मेमोरी पे. ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो फर्दर अपनी ऑक्यूपेशन को प्रिज्यूम कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी मोर अदर थिंग्स. Then it comes to the family therapy. Family therapy is
फार मोस्ट प्रायर नीड जो हमें अटेंड करना ही पड़ता है। फैमिली को नॉलेज ही नहीं होता, फैमिली को साइको एजुकेशन उस लेवल की प्रोवाइड करनी पड़ती है सो दैट कैन अंडरस्टैंड कि सिम्टम्स कहाँ से ट्रिगर हुए, फिर वो कैसे कैसे इतने डेप्थ में चले गए, एंड फैमिली को गाइड करना पड़ता है कि ये कुछ और नहीं है, ये साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, यहाँ पे मेडिकेशंस का रोल बहुत ज्यादा है। तो फैमिली थेरेपी ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन इट कम्स थ्रू द ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अपनी लाइव एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाए। ग्रुप ऑफ द पीपल में दे कैन शेयर कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने कैसे रिकवर किया। फिर जब पेशेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वो और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं इनसाइट के टुवर्ड्स की हाँ ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव अ कॉग्निटिव रेमेडियल थेरेपी, जैसे मोस्टली क्या होता है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। अब इतनी देर से ये सारे सिम्टम्स है, पेशेंट की अटेंशन ही नहीं है, उन्हें कुछ भी पता हो, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपनी मेमोरी पास्ट इवेंट्स को रिकॉल तक नहीं कर पाते। तो कॉग्निटिव रेमेडियल थेरेपी हमें हेल्प करती है कि कैसे हम उनकी मेमोरी को दोबारा रीगेन कर पाए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो उनके अटेंशन पे वर्क करती हैं, उनके फोकस को एनहांस करती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटीज पे वर्क करती है। देन देयर इज a role of group therapy and drama, like psycho drama जैसे हमने प्रेजेंट किया, वैसे हम पेशेंट्स को प्रोफेशनल सेटिंग में गाइड करते हैं कि वो एक टीम बनाएं और वो साइको ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट करें कि उन्होंने कैसे सिम्टम्स पे वो रिकवरी पे आए थे या उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर उन चीज़ों से दूसरे पेशेंट इनसाइट गेन कर पाते हैं। सो ऑल दीज थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम प्लान करते हैं जब मेडिकेशंस के साथ पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइडेड हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल वी कैन प्लान इन अ वे। That's it. जैसा कि आंचल मैम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है और स्टिग्मा है, तो काफ़ी साल निकल जाते हैं एंड द बीमारी गोज अनट्रीटेड और काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स दे लैंड अप ऑन द रोड। काफ़ी सारी फैमिलीज उनको घर से बाहर निकाल देती हैं, घर में बंद करती हैं। टू कैरी दिस फॉरवर्ड, लाइक आई इनिशियली इंट्रोड्यूस, डॉक्टर स्ने इज विद अस। I mean, besides being MD in psychiatry, he has lot of experience. I think it's almost 15 years he's in this field. पर जो सबसे important और मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, जो आप लाइव देखेंगे कि किस तरह से he is working for homeless schizophrenic patient, किस तरह से ये उनको लाते हैं, ट्रीट करते हैं, and every slide you are going to see is real case. From disease to recovery, their family taking the patient back. So hats off to you, Dr. Sneh. We want you here. जैसे कि आंचल मैम ने स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण बताए थे, तो शुरुआत तो मैं ये करूँगा कि होमलेस हो क्यों जाते हैं, होमलेस वाली सिचुएशन क्यों आती है। इसमें ये बीमारी का इटसेल्फ जो नेचर है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। कारण का पेशेंट को जैसे डिल्यूजन है, मैम ने बताया कि वो फैमिली के लिए सस्पिशियस है, फैमिली के लिए जैसे सस्पिशियस है वो, है ना, तो शक करता है अपने फैमिली मेंबर पर, तो घर से भाग जाएगा गुस्से में आके, उसको हेलुसिनेशंस हो रही है, आवाज़ें आ रही है, उन आवाज़ों से इरिटेट होके वो निकल जाएगा। कई बार इसमें हेलुसिनेशन में कमांड हेलुसिनेशन होता है, जैसे वो टाइप की बात कर रहे थे, इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, मरीज आपस में आवाज़ें सुन रही है, बातें कर रहे हैं, कमांड हेलुसिनेशन होता है। कमांड हेलुसिनेशन में उसको ये कमांड आ रही है कि तू भाग जा घर से, यहाँ क्या कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मरीज घर से निकल जाएगा। कई बार कोग्निटिव इंपेयरमेंट, जब बीमारी ये लंबी चलती है ना, उसमें कोग्निटिव इंपेयरमेंट के अंदर वो घर से निकल जाएगा। तो ऐसे इन सब कारणों से कहीं ना कहीं मरीज है, ये अकेली ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर मरीज है वो रोड पर आ जाता है, घर पर आ जाता है। एग्जैक्टली मैंने कई जगह सर्च करने की कोशिश की, मेरे को कहीं एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं मिली कि आउट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में से कितने लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं MBBS करता था जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज से 2007-8 से, उस टाइम से हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे इन होमलेस स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से। और राजस्थान में एक बहुत बड़ी संस्था है अपना घर के नाम से, करंटली वहां पर 6500 मरीज है, वो 6500 मरीज भरतपुर में है, आगरा के पास में है, राजस्थान में वो, उनकी उस एक भरतपुर के अंदर 6500 मरीज है जो स्किज़ोफ्रेनिया के है। ऐसे ही अपना पिंगलवाड़ा है, जैसे
पिंगलवाड़ा में लगभग 1800 पेशेंट है सारे, मानेवाड़ा और बस स्टैंड वाली और बाकी जो दूसरी सारी ब्रांचों में मिला के लगभग 1700-1800 के आसपास पेशेंट है। उनमें से लगभग 1200 पेशेंट है वो स्किज़ोफ्रेनिया के। तो मेरे कहने का मतलब ये फिगर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फिगर है। और इसका कारण क्या रहता है, और आज हम इकट्ठे हुए इसका बहुत बड़ा मकसद है। आजकल इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी दवाएं, बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है जिससे इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की उसकी समझ विकसित नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण वो मरीज है वो इलाज के अभाव में रह जाता है और कहीं ना कहीं वो सड़क पर, रोड पर आ जाता है। कारण कि हमने कितने कितने सालों से, हम 10-10 सालों से, 20-20 सालों से जो रोड पर थे ऐसे मरीजों को हमने रेस्क्यू किया और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो मरीज ठीक हो जाते हैं, फैमिली में रीयूनाइट होते हैं। कहने का मतलब अगर हम इलाज कराएं, मेडिसिन बाकी और ट्रीटमेंट रेगुलर करें तो ये मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो फैमिली को ये चीज समझने की जरूरत है कि इस चीजों का, इस बीमारी का इलाज संभव है। अब इसमें फैक्टर क्या रहते हैं, एक तो क्या होता है कि इस बीमारी में सबसे पहले तो एक मरीज को खुद को इंसाइट नहीं होती, मरीज को खुद को यह नहीं पता होता कि वो बीमार है। और कोई भी देखो फिजिकल कंडीशन है, किसी को बुखार होगी, किसी को दर्द होगा, कोई टीबी की बीमारी होगी, हार्ट की कंडीशन होगी, उसको मरीज को खुद को पता होता है कि मेरे को ये परेशानी है, वो जाके इलाज करा लेगा। और भी दिमागी और भी परेशानियां होती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें पेशेंट को इंसाइट होती है कि मेरे को उदासी है, मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में मरीज को इंसाइट नहीं होती। जैसे अभी साइको ड्रामा में बड़े अच्छे से कर रहे थे ये, तो मरीज के लिए वो सब कुछ रियल है, उसके लिए वो आवाजें रियल है, उसके लिए वो आवाजें सच्ची में ही आ रही है, उसके लिए झूठ मूठ नहीं है, उसके लिए सच्ची में घर वाले कुछ उसका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, सच्ची में उनके लिए कैमरे लगाए हुए हैं। मरीज के लिए सब कुछ रियल है। मरीज को नहीं पता कि ये सारे जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, मेरी जो आवाजें मेरे को सुनाई दे रही है, ये सब कुछ हो रहा है, वो उसके लिए तो रियल ही है सब कुछ, उसके साथ तो सच्ची मुच्ची में ही हो रहा है। अब जब उसके साथ सच्ची मुच्ची में हो रहा है सब कुछ, तो वो इलाज के लिए मानेगा? नहीं मानेगा वो। तो सबसे एक चीज तो अपने को ये समझने की जरूरत है एज ए फैमिली मेंबर कि मरीज को खुद को इंसाइट नहीं है इस बात की कि वो बीमार है। जब उसको इंसाइट नहीं है कि वो बीमार है तो वो इलाज के लिए कभी भी आएगा नहीं। इसलिए फैमिली को जिम्मेदारी इस ट्रीटमेंट की लेनी पड़ेगी। अब इवनिंग क्लासेस होती है, एडिक्शन वाले पेशेंट की रेगुलर क्लासेस होती है, उसमें सर भी बार बार कहते हैं कि पेशेंट की खुद की कैपेसिटी नहीं है, उसको नहीं समझ है उसको ट्रीटमेंट कराने की, उसको नहीं पता। जब पेशेंट को नहीं पता कि मेरे को ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट कराना चाहिए, मुझे बीमारी है कि नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? फैमिली की बनती है। तो जब तक फैमिली जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्लासेज में बार बार एक ही बात कही जाती है, बार बार यही बात रटाई जाती है, बार बार यही बात समझाई जाती है कि जब तक फैमिली जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक मरीज का इलाज करना संभव नहीं है। क्योंकि मरीज को समझ नहीं है, उसको नहीं पता कि वो बीमार है, वो उस कैपेसिटी में नहीं है, उसको वो समझ नहीं है कि मैं बीमार हूं। इसलिए फैमिली की जिम्मेदारी, फैमिली को ये सारी चीज समझने की जरूरत है। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम इसी चीज के लिए किया जाता है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रांस का एक साइकेट्रिस्ट है फिलिप पेनेल, उन्होंने क्या होता, पहले जैसे मैम ने बताया कि पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था तो असाइलम में पेशेंट को छोड़ देते थे दूर दूर। उन्होंने धीरे धीरे उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट उस तरीके से शुरू किया। तो फैमिली को इस चीज की समझने की जरूरत है कि एक तो पेशेंट को इंसाइट नहीं होती, अब इंसाइट नहीं होती तो वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएगा, दवाई नहीं खाएगा, कई तरीके के चैलेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का हल है अगर अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से डिस्कस करेंगे और उसको सलाह करेंगे। आजकल दवाइयां इतनी अच्छी अच्छी आई है कि जैसे कोई अगर मेडिसिन नहीं खाता तो इंजेक्टेबल आते हैं, आजकल डेपो इंजेक्शन आते हैं, है ना, 1 मंथ का, 3 मंथ का। अभी यूएसए में तो जैसे पेलिपेरिडोन इंजेक्शन 6 मंथ का भी आ गया, इंडिया में वो अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब 6 मंथ का इंजेक्शन आ गया। एक क्लोजापिन ड्रग है, उसका भी अभी ट्रायल चल रहा है, उसका डेपो का।
उस ड्रग का डेपो का ट्रायल चल रहा है, आने वाले टाइम में जरूर साइंस ने प्रोग्रेस करनी है कि उनका भी डेपो आ जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी साइंस में ऐसी ऐसी मेडिसिन आ रही है कि जैसे मरीज दवाई नहीं खाता लेकिन उसको इंजेक्शन लगा दिया तो 3 महीने या 1 महीने या 6 मंथ उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उस मरीज को डॉक्टर तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना। वो ट्रीटमेंट उसको तभी मिलेगा जब वो मरीज है डॉक्टर तक पहुंचेगा। अगर वो डॉक्टर तक ही नहीं पहुंचेगा तो ये ट्रीटमेंट सारा मिलना नहीं। तो एक तो फैमिली मेंबर के लिए चीज समझने की जरूरत है कि इस बीमारी में मरीज को इंसाइट नहीं होती, और इंसाइट नहीं होने से ही ये सारी चीजें होती है। दूसरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कारण कि मैं कोरोना के टाइम में भरतपुर जो मैं आश्रम बता रहा हूं ना, वहां पर जैसे डेली 10-12 के आसपास मरीज रेस्क्यू होते हैं। तो जैसे जैसे मरीज क्या होते हैं, एंटीसाइकोटिक चलती है, ट्रीटमेंट चलता है, तो वो अपना एड्रेस बताते हैं। वो क्या करते थे, वहां के जो काउंसलर है, मेरे को एड्रेस, में कोरोना में फ्री होता था, SGRD में जॉब करता था, उन्होंने लगभग 7-8 एड्रेस मेरे को रोज भेजने। मैं गूगल पर, मेरे को भी एक दिलचस्पी सी हो गई। अच्छा, फिर मैं एड्रेस ट्रेस करता था, तो कभी किसी की मदर से बात होती थी, कभी फादर से बात होती थी, किसी की बहन से बात होती थी, किसी के बेटे से बात होती थी, मतलब अलग अलग फैमिली मेंबर से, और बड़ा वेराइड एक्सपीरियंस मुझे मिलता। मैंने एक चीज नोट की कि फैमिली ऐसी बात नहीं, इलाज कराती है बहुत सारे मरीजों का, लेकिन उसमें एक जो चीज नोटिस की कि इस बीमारी का नेचर कहीं ना कहीं फैमिली नहीं समझ पाती। इस बीमारी का नेचर क्या होता है, इट्स ए क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। अब क्या होती है, फैमिली एक बार बीमार हुआ, इलाज कराया, ठीक हो गया, वो थोड़े से ठीक हुआ, ट्रीटमेंट छोड़ दिया, ठीक है, फिर वो 2-3 मंथ के बाद रिलैप्स कर गया, फिर हो सकता है एक बार इलाज कराएंगे, मतलब 1-2 बार इलाज कराएंगे, फिर अगर दोबारा बीमार होते हैं ना, तीसरी चौथी बार, नहीं ये ठीक नहीं होना, ये डॉक्टर वाली दवाई से ठीक नहीं होना, इन्हों तो थोड़े दिन इलाज कराते हैं, दवाई खाता है, ठीक हो जाता है, फिर ये बीमार हो जाता है। मैंने लगभग मरीजों से फैमिली मेंबर से बात की, उन्होंने कहा नहीं सर हमने इलाज कराया था, लेकिन उन्होंने उसका इलाज कंटिन्यूस नहीं किया, लगातार डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहे। अब यहां पर बार बार आपको काउंसलर समझाते होंगे, सर फॉलो पर आया करो, ये 3 महीने का ट्रीटमेंट है। वो 3 महीने का ट्रीटमेंट से बात नहीं बनेगी जब तक अपन प्रॉपर फॉलोअप में नहीं आएंगे, प्रॉपर डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि 3 महीने में कोई छू मंतर हो गया एकदम से कि हाँ बिल्कुल 100% ठीक हो गया, दोबारा रेगुलर आना पड़ेगा। हमारे पास इलाज नहीं है, कारण कि बीमारी लंबी बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, रेगुलर फॉलोअप्स में आना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें एज ए फैमिली को मेरे को लगता है समझने की जरूरत है कि एक तो मरीज के सिर पर ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना, मरीज की बस की बात नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, हमें ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दवाई हमें खिलानी पड़ेगी, हमें उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ना कि वो उसके मरीज के हाथ में दे दी। अभी हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है, उसकी फैमिली ने मरीज को दवाई दे दी कि ये अपने आप खा लेगी, और उसकी दवाई चेक कर उसने 1-2 महीने तक ध्यान नहीं दिया, वो पेशेंट रिलैप्स कर गया, अभी एडमिट है हमारे पास। उसकी मदर को मैंने ये समझाया कि इसको नहीं पता कि ये बीमार है, दवाई आपको अपने हाथ से देनी पड़ेगी, अगर आपके हाथ से नहीं खाती तो आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करो, वो इसका कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। आप काउंसलर से डिस्कस करो कि मेरे हाथ से दवाई नहीं खाती, मरीज को उसके हाथ दवाई नहीं देनी। तो एक तो ये चीज समझनी है, दूसरा क्रोनिक नेचर समझनी है। अब नशे वाला एडिक्शन का मरीज है, वो भी कहते हैं जी एक बार इलाज कराया ठीक हो गया, फिर दोबारा कर पैंदा है। इसका हल क्या है कि हमें इसका लॉन्ग टर्म इसके इंटरवेंशन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स की जरूरत है, रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये कोई वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। जैसे शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी लगातार उसका अप एंड डाउन चलता रहेगा, हर महीने 2 महीने बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शुगर अपने को बार बार चेक कराते रहना पड़ेगा। शुगर कम ज्यादा होगी, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कोई कम ज्यादा करना पड़े, घटवध करनी पड़े कोई दवाई। हाँ ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है अपने को। तो ये 2 चीजें हैं फाइनल, कि एक तो पेशेंट के अंदर इंसाइट नहीं होती, इसलिए हमें ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा, इस बीमारी की क्रोनिक नेचर है, इसके कारण इसका ट्रीटमेंट रेगुलर फॉलोअप में रहना है। ऐसा नहीं कि मरीज एक बार ठीक हो गया तो भाटिया अस्पताल को बस उधर मुंह ही नहीं करना उधर, ठीक है, एक बार हो गया ठीक तो कोई काम ही नहीं, बस दूर से ही सत श्री अकाल। लगातार फॉलोअप में रहना है, जब तक डॉक्टर साहब खुद ना कहे ना कि अब तुहानू आने की लोड़ नहीं है, या आपको 2 महीने बाद आने की जरूरत है, या 3 महीने बाद आने की जरूरत है,
तब अपने को ट्रीटमेंट छोड़ना है, अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना। अपने आप से ये नहीं समझना कि ये मरीज ठीक हो गया, वो बीमारी अंदर रहती है, जाती नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। अच्छा, इसको बताना है अब, जैसे बेसिकली ये मरीज है ना, डॉक्टर्स ने स्टॉर्म क्रिएटेड दिस। नहीं ये स्लाइड के बारे में बताना हाँ है। जी सर, और भी हैं स्लाइड्स। तो ये ना, ये बेसिकली हमने हमारी 13 आसरा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक एनजीओ है जो लगभग पिछले 6 साल से काम कर रही है, और पिछले 6 ईयर में हमने 450 लोगों को, मरीजों को अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, इन तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट से रोड से रेस्क्यू किया है। और हमारे क्या है, बहुत सारे लोग फेसबुक पेज से जुड़े होते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। हमारे खुद के, हम, मेरे को खुद को दिख जाता है, डॉक्टर नीलपुरी सर है, उनको कहीं दिख गया, जो टीम से हमारे जुड़े हुए लोग, उनको कहीं भी इस तरीके का मरीज दिख जाता है तो वो फोन करते हैं, हमारी टीम लेके आती है। अब जैसे ये मरीज देखो आप, तो जैसे मैम बता रहे थे, कैसे देखो उसकी जरा, मतलब कितने दिनों से नया नहीं है, ये कपड़े कैसे है, पैरों में चप्पल नहीं। ये फोटो आप दिमाग में रखना कि आपको कहीं भी सड़क पर, रास्ते में, कहीं बस स्टैंड के आसपास, गुरुद्वारे में या कहीं भी दिखते हैं, तो इस तरीके के मरीजों को अपने को ध्यान करना है। वो कोशिश करनी है कि थोड़ा टाइम निकाल के इनको हमें इन्फॉर्म करें तो हम इनको रेस्क्यू कर सके। अब ये मरीज क्या होता है, ये ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे लगता है कि ये ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, ये मरीज ठीक हो सकते हैं। अब मेरी गाड़ी का, जो गाड़ी ड्राइव करता है, मेरी गाड़ी आज की तारीख में, वो एक स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है, केरला का है वो, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। He had been an engineer. अच्छा, एक और खास बताऊं, हमारे आश्रम के अंदर 53 इनमेट्स है, कोई पेड वर्कर नहीं है हमारे पास। सारे के सारे जो मरीज है वो खुद ही काम करते हैं ठीक होने के बाद। जैसे क्या, अब एक मरीज है हमारे पास, कारत सिंह, जो जाजगढ़ है ना, वहां पर लगभग 10-12 साल तक वो लावारिस घूमता था। अच्छा, आज वो है ना, 2 टाइम 55 जनों का आटा गूंदना और रोटी मतलब बेलनी, मतलब 2 ड्यूटी उसकी है। हाँ, और वो दोनों ड्यूटी मतलब पूरे ना, मतलब सुबह शाम पूरी ईमानदारी से करता है। ऐसे ही 2 जनों की ड्यूटी बर्तन धोने की है, बर्तन, एक जना है उसकी साफ सफाई की ड्यूटी है, एक जना है उसकी कपड़े धोने की, मतलब कपड़ा धोने, ऐसे करके अलग अलग ड्यूटी है। वो अपनी ड्यूटी सारी अपने आप ही करते हैं। और इसमें से मोस्ट ऑफ मरीज है ना, हमने फैमिली में भेज दिए। अच्छा, लास्ट में एक बात और कहूंगा, एक मैंने जो जिंदगी की सच्चाई इन मरीजों के साथ काम करते हुए देखी है, जिस मरीज की माँ और बाप पूरे हो जाते हैं ना, उस मरीज का हमारा एक्सपीरियंस है, उसको घर कोई नहीं ले जाता। तो इसलिए ना, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे ऐसे नहीं कहते कि माँ बाप क्या चीज होती है, ये मैंने सच्चाई में फील किया है। मैं जब, अच्छा, मैंने ऐसी लड़की का एड्रेस टेस्ट किया, जैसे 28 साल की लड़की है, उसके भाई से बात की, ले जाने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी की माँ है और बाप अगर जिंदा है, मैंने बिहार के रिमोट से रिमोट डिस्ट्रिक्ट सासाराम, गरीब मारी बीच, मतलब इतने भी नहीं कि उनको 500,000 रुपए दे के अमृतसर मतलब ट्रेन में भी बैठ जाए, फिर भी माँ उनको लेके गई, मतलब ऑफिस होके। तो इन मरीजों से मैंने मतलब बहुत ही सच्चाई देखी कि अगर इन मरीजों की माँ पूरी हो जाती है, इनको कोई नहीं ले जाता। राहुल सर, पत्नी नहीं ले जाती, बच्चे नहीं ले जाते, भाई बहन नहीं ले जाते, चाचे ताऊ तो दूर की बात। तो इसलिए माँ और बाप का जरूर मतलब हमेशा हमें ऋणी होना चाहिए। और इन मरीजों को मैं सच्ची में मतलब ये कोई मरीज, मतलब मैंने सैकड़ों मरीजों का ये मतलब थीसिस मैंने निकाली ना, एक मरीज की नहीं, सैकड़ों मरीजों को नोटिस किया कि मतलब अगर माँ बाप नहीं है, और इसमें माँ बाप में भी स्पेशली मैंने कौन देखा, माँ को, कि कई बार अकेला बाप है ना, वो भी ध्यान नहीं करता। अगर दोनों माँ बाप है या माँ अकेली है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कोई दुखी सुखी होके भी उस मरीज को मतलब लेके जाएगी। अब देखो ये, एक मिनट पीछे करना। अब ये मरीज, हाँ ये मरीज देखो कैसी कंडीशन में था। अच्छा, ये कई बार गर्मियों में देखो क्या होता है कि इनको कोग्निशन उतनी नहीं होती। गर्मी के अंदर कितनी जैकेटें पहनी हुई है। एक मरीज हमने रेस्क्यू किया, 7-8-10 पैंटे पहनी हुई गर्मी के टाइम में, उसी में टॉयलेट करते रहना, वो टॉयलेट अंदर सूख गई और वो जींस मतलब कपड़ा पहना वो बिल्कुल चिपक गया मतलब पैरों के। तो ऐसी बहुत बुरी कंडीशन में ये मरीज होते हैं। ये देखो अभी ठीक होने के बाद, जैसे आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है ना, ये कारत सिंह है और ये रेशम बापू है।
ये दोनों है ना भाई है, और दोनों स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज, ये बड़ा भाई है और ये छोटा है। अच्छा, ये 94 में पुलिस में इनका हुआ, इन्होंने ट्रेनिंग भी की और 4-6 महीने जॉब की। उसके बाद इनको साइकोसिस हो गया, वो छूट गई। कंपनी बाग के सामने लगभग 97-8 से लेके और 2018 तक कंटिन्यूसली वहां घूमते थे ये। अभी ये पूरे हो गए। ये हमारे, इनका सगा भाई कारस सिंह, ये हमें बाद में मिला था, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज। ये जो मैं जो खाना बनाता है वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों मरीज हमारे इस तरीके से, तो ये पूरी तरह से मतलब ठीक हो सकते हैं। ये अब अच्छा, ये मरीज देखो, कारस सिंह जब ये लेके आए थे तो वैसा था ये सर, जाजगढ़ एरिया में, और कई सालों तक। तो जैसे मैम ने बताया ना कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज है, बहुत सालों तक अनट्रीटेड रहते हैं। सेम एडिक्शन में भी क्या होता है कि बहुत साल तक मरीज है वो अनट्रीटेड रहता है, और वो एडिक्शन बीमारी है वो बढ़ती जाती है। और वो अनट्रीटेड क्यों रहता है? फैमिली की नासमझी के कारण। ये तो थोड़ा ही करता है, ठीक हो जाएगा, छोड़ देता है, जैसे जसबीर जी बातें बताते हैं ना, तो ऐसे करके मतलब है, ये उनके वो पेट डायलॉग है ना तो मेरे को भी याद हो गया। मैं सर को भी। हाँ, तो वो उस चक्कर में फैमिली है वो ट्रीटमेंट नहीं कराती और पेशेंट अनट्रीटेड रहता है। सेम स्किज़ोफ्रेनिया में कोई एक्सपेंसिव नहीं है, जीरो। कई लोग नहीं आते ना पैसे के जी जीरो है जी। एक और ये तो जीरो है। तो जीरो है। वैसे आपको बताऊं मैं, ये तो एनजीओ है, यहां पर हमारा कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का जो इलाज है ना, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, ये कोई कॉस्टली नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, हार्ट की बीमारी जैसे स्टेंट है वो 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपए के आते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। ओलंजापिन एक गोली है, वो 7 रुपए की एक गोली है, बताओ। और हमारे पास लगभग ओलंजापिन से है ना, मतलब 7 या 15 रुपए के रोजाना के खर्चे से ठीक है मरीज। हाँ, तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा है या बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं। तो मतलब सिंपल से ट्रीटमेंट से, सिंपल सी इन चीजों से ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। अब हाँ, अच्छा, ये एक चीज और बताऊं, अभी पंजाब में स्पेशली जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर, गुरदासपुर, जो डेरे वाला एरिया है, अजनाले वाला एरिया, अटारी वाला एरिया, इसमें बहुत सारे जट जमींदार और गुज्जर। अमृतसर क्या है, एक प्रकार से लास्ट स्टेशन है, तो बहुत सारे मेंटली अपसेट मरीज है ना, वो ट्रेनों में बैठ के आ जाते हैं। जैसे घर से भाग गया तो बस में या किसी और चीज में तो बैठने देंगे नहीं, तो यूजली क्या होता है, वो ट्रेन में कोई पूछता नहीं है, तो ट्रेन में बैठ के आ जाते हैं। और अमृतसर इज दी लास्ट स्टेशन, ठीक है। तो यहां पर जैसे लास्ट में ट्रेन आगे जाके वो आगे खाली होती है, तो वहां उतार देते हैं। अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर एक गिरोह काम करता है, वहां पर जैसे चाय वाला है, वो ऐसे किसी बंदे को फोन कर देगा, जिनको ये इनको बोलते हैं फौजी। तो जिसको चाहिए होता है ना एक बंदा, वो कहेगा सानू 2 फौजी चाहिए। तो वो रात बिरात को ऐसा कोई भी मेंटली अपसेट मरीज आगे तरनतारण में जिले में पिंड है, 20-22 साल तक इस लेडीज को घर में बंधक बना के काम कराते थे। और लगभग 44 मरीजों को हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया है। ऐसे ना, उसमें क्या होता है, ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं होता उसको। जैसे किसी ने फिजिकल भैंस रखी है, 10 मज्जा रखी है, उसको रोजाना ये गोबर इधर से उधर सुटना है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं है कि उसको ये गोबर इधर से उठा के उधर सुटना है। अच्छा, पट्ठे पाने हैं, इधर से पट्ठे काट के लिया है बंदा, उसको इधर से उधर, अच्छा, काटने में मतलब काम ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा कोई दिमाग वाला काम नहीं है। इनसे इस तरीके का काम कराते हैं कि ज्यादातर गाय भैंसों के उसमें केयर टेकिंग में काम कराते हैं इनसे। किसी ने, हाँ, चलो मैंने टाइम काफी ले लिया, ठीक है, थैंक यू। At Bhartiya Hospital and Hermitage, and with doctors like Dr. Sneh, we have a buffet of dedication. So वानी को विश्राम यहाँ पे नहीं हो सकता. So sorry Dr. Sneh, I had to intervene. तो हमने बीमारी की बात करी, हमने इलाज की बात करी. Since time is always a limitation, so we have 2 to 3 clips जो हमारे पेशेंट अब स्किज़ोफ्रेनिया में वॉलंटरी उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है मैसेज. तो राहुल सर, प्लीज प्ले द क्लिप्स. One of them has arrived at hospital also. Hello, Vikrant. 2 of them.
ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ। ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਟੇਜ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ। Next, please. Dr. Abhi, you can wave from there since you're present also. He's a doctor now, yes. Hanji, next. Next, please. ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੀਗਾ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੈਜ਼ੋਫਰੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ ਡਿਲੂਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਲੂਜਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੂਜਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੂਜਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਕੁਝ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ Sukraj, you're looking more handsome there. You're looking more handsome there. ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ Yes. ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨਿਕ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। This boy is a super genius boy, and he was addicted to studies. So ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ addiction to studies, and he cleared the PMT and got into community medicine with my instruction. That is the branch where he'll be comfortable and he'll be able to take on mental health for future. All those people who are hidden in their houses, he will be the person who would be in the future planning of. प्राइड देखें आप, कितनी प्राइड है इसमें। क्या पासवर्ड है? Sukraj. Raj, anything you would like to say now? just thankful to everybody and I would just like to say ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਓਪਨਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ। Very good. So that is the difference between, now you see these people are more productive than a normal person. He is running one of the biggest school in Chandigarh.
and is an honor also, but he is opting to say that he's administrator. And so most of the time people are administrator and they say they are the honor. But he has taken this job as an administrator with his father. And you cannot imagine the way he's working towards that. He's playing golf, he's playing the highest quality of life he's living. And it doesn't matter how rich you are, it doesn't matter. It has to be the one message is given you, come out of the toxic game, this will kill you. And this will take to you the fatal end. So, thank you very much. I'm proud of my students. So one more slide and then we'll call the man himself. Thank you, Sukraj. मतलब मैं एक नवा बना तो मेरे हस्बैंड वाइफ मिलके और उस घर ਵਿੱਚ मतलब मैं कई बार मैंने ना कल्ला को फील होया मैं नंबर से तो जाए नहीं पाऊं कभी मैंने ना कल्ला को फील हो सकते तो समझ लगती है की करूं मैं बिल्कुल ही समझ नहीं लगती थी और पेरेंट्स का डर लगी बट मैंने आइडलाइंस वांट टू कमिट सुसाइड दे कुड लिव इन न्यू हाउस ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਸਲੋ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ मैं आराम से अपने न्यू हाउस रह रही हूँ और अपने इंजॉय कर रही हूँ बिल्कुल टेंशन नहीं गई ऐसे जाओ कुछ टेंशन नहीं आराम मैं आराम बैठती हूँ नवे घर और इंजॉय करती हूँ दैन लास्ट मेरे स्लीप एडिक्शन हो गई थी बहुत ज्यादा और मुझे काफी प्रॉब्लम आती सी ते मेरे को मतलब बेड तो उठ ही जाता सी और हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लै रही है तो बहुत फर्क है और आई एम यूजिंग पावर ऑफ अदर कोई मैंने गाइड करे ताकि मैं अपनी ये ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਐਸ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ really ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ She's not present, but yesterday uska follow up tha. She had come. थोड़ा दूर से आती है, so she couldn't come. And there are lot of patients, but definitely we don't have so much time. But one of our family fellowship member has written a poem, Karan. I want you to come here and recite it. इसको ऐसे बोलो और ऐसे ये poem बना देता है. So we told him to make on schizophrenia, and he just did within 5 minutes. ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸਣ ਦਿਲ ਰੋਵੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੋਕ ਤੱਕਣ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਭਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ Yes. Karan had come here with his father. अपने उनके father पुलिस में serve करते हैं for addiction treatment. But जैसे कि हमारे बच्चे भी काफी trauma देखते हैं. He's been through a lot. बहुत छोटा था जब आया था. Now he's full of recovery here. तो जब हम पावर की बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी फील्ड है, we can go on the stage and say we are an actor, we are engineer, we are this, but it takes lot of audacity, courage to come on the stage और बोलें कि
मेरा एडिक्शन का ट्रीटमेंट हुआ है, मेरा स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट हुआ है. इट्स नॉट ईजी, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम वी कम आउट इन द ओपन. And before I call the man himself, Dr. JPS Bhatia, I don't know, सर के लिए बहुत सारे adjectives कम पड़ जाते हैं. This is where I fail in English. मतलब अच्छी वाली English है मेरी. But doctor, mentor, like a father, like I mean एक डॉक्टर जो 3 रातें पेशेंट के साथ कमरे में जाग के रह सकता है बिना गोइंग टू हिज होम. एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट जिसकी शादी होने वाली है बट फैमिली डरी हुई है कहीं ड्रग्स ना ले ले, कुछ हो ना जाए, वो शादी शगन सेरेमनी अटेंड कर सकता है. एक डॉक्टर जो रात को 12 बजे भी फोन कॉल अटेंड कर लेता है इन केस ही फील्स कि कोई लाइफ इज इन डेंजर. So endless this thing for sir, lot of gratitude to you. So बात करी हमने पेशेंट की, और ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट घर में और फैमिली ना पेशेंट बन गई हो, because it is called a family disease. So केयर गिवर्स यूजुअली इग्नोर्ड रहते हैं, केयर गिवर्स यूजुअली लॉस्ट रहते हैं, as much as in pain as patient is. तो मुझे याद है कि 6-7 साल पहले मेट्रो में मैं और मेरा बेटा ट्रैवल कर रहे थे, और माय सन हैज सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर. तो मेट्रो में हम खड़े हुए थे और ये मुझे कहता है कि मम्मी मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा भगवान ने क्यों बनाया. दैट टाइम हम प्रोग्राम में नहीं थे, वो रिकवरी में नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ देखूं, उसे क्या बोलूं. मेरे को लगता था कि बस वो मेट्रो फट जाए और मैं गायब हो जाऊं, मैं अपने बेटे को क्या बोलूं. बट आफ्टर आई मीन इट्स गोइंग टू बी 4 years in recovery, more than that now, and I'm proud to say that he's doing very well. I'm proud of my son. He is going through a little phase. So ये जो सारी पेंटिंग्स हैं, हम जब बोलते हैं ना कि वॉइसेस आती हैं जब हमारा डार्क फेज ऑफ बीमारी चल रहा होता है, so these are the paintings he's made when he's in a phase. See all dark colors, and when he's not, he's making those that Naruto and all. So we also have another female patient, she's not here, she's made those paintings. Matlab they are so creative, they are so intelligent. Kanav, I know you're going through a phase, but you can say hi and I love you, mom. Hi, mom, love you. So I think this event is incomplete जब तक हम caregivers के बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि how to go about taking care of your patient. And I think sir is the best person, क्योंकि अगर हमें जितनी power आई है, we've been empowered to stand here, is all because of this man's foresight, passion, dedication and a vision. So sir, please come here on the stage. Sir, would you like to sit? Would you like to नहीं sit? आते, ठीक है. सर का ब्रेन हमेशा साथ रहता है, नहीं सर का नहीं, मतलब नम्रता जी ने कुछ ऐसी बड़ी बातें बता दी हैं. आई डोंट थिंक मतलब ये बातें कुछ ऐसी लगती हैं कि जैसे अपने बारे में क्या बात करनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू फील दैट हाउ यू closely associated you are with your patients, and that's your purpose of life, not just being a doctor or a psychiatrist, something more than that. And कुछ बातें मैं ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ. ਨਾਲੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, so there are thousands of people sitting for Canada, America, Australia, everywhere. They are all listening to all this. It's a live meeting and it's a usual meeting, every day we do it. So मैं मतलब ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ. ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ VIP ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ. ਤੋ ਫਿਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਮਰਤਾ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਕਾਲ ਸਮਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਟੂ ਅਸ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋਏ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ we have achieved not that these patients are okay. Celebrate ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ now it has come into the phase of a treatable disease. Like we have treatment for hepatitis C, like we have treatment for cataract, like we have treatment. Now it is in the treatment. मतलब दो चीज़ें होंगी है ना, एक जगह पे untreated disease है, एक treatment है, and this is now a most successfully treated disease. दूसरी गल है कि it is a brain disorder. I don't know how neurologists could not catch up with this, but my fascination for brain and neuroanatomy and neurosystem and everything makes me venture into neurology. कि शायद neurologist को ये चीज़ समझ नहीं आई है, neurological disorder सीगा, but because of all the neurological disorders have a psychiatric issue, they could not catch up on this. So it came to psychiatry. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇ ਆਲ ਹੈਵ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਸੋਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਟਿੰਗਟਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਫਰਮ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਨੈਰੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਡਿਸਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੈਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਚ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਇਟ, ਮਾਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਸੋਨਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਟਿੰਗਟਨ, ਨਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਕਟ ਚੇਂਜਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and you can see the SPECT scan and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਪਏਗਾ। ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਚੋ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਏਜ। ਪਾਰਕਿੰਸੋਨਿਜ਼ਮ 60 ਇਅਰਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਟਿੰਗਟਨਸ 40 ਇਅਰਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 50 to 80 ਇਅਰਸ ਹੈ। तो मैं मतलब मेरा थोड़ा जिहा डिफरेंट व्यू आया कि जे ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਵੈਰੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਇਜ਼ 80 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 60 ਇਅਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ 80 ਇਅਰਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਾਲੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ we can handle it in a best possible way. But now what we are celebrating is this thing. Okay, what you consider as Pagalpan, lunatic, mental hospital, Pingalwada, matlab, that's a thing. But that's one part of it, na? ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ it's a most modern disease. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ and this is equal to our stunts and even better than that. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੇਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 2-3 ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ I know the richest of the richest families in Amritsar who have got so much and they have bought their own separate houses with their caretaker so that they should not see their children over there and they have this is the people who are rich and that is what Dr. Sneh told you about the peer.
ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗॉट ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੈਪਸਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 20% ਐਂਡ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਜਿਸ 80% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ what we are enjoying the remission pages and ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ any normal productive life ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 20% relapse rate ਹੈ। 20% time life ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ intensity ਤੇ duration ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the best possible treatment। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ how productive our treatment and modern is, we should be celebrating it। the most important part is emergency ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਐਜੀਟੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਐਜੀਟੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਦ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਔਰ the one which is Dr. Sneh has also told, they run away from their homes and never found again, and generally they go to deras or anywhere where they feel protected and they are being ਜਿਵੇਂ bonded labor ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ but not the patient। our patient don't deserve that। that is again an emergency ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ patient ਦਾ ਜੇ treatment ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ they can run away from any time and cannot be traced at times। so this is an emergency and ਇੱਕ ਇਹ problem ਹੈ ਕਿ they sometimes attack the people who want to save them। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਟੈਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬਟ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਟ ਵੀ ਹੈਵ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਨਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਨਲੱਕੀ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 15 16 17 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ 10 years ਲੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10 years ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟਸ ਅਨਲੱਕੀ ਪਾਰਟ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਬਟ ਆਈ ਮਸਟ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਡਿਸਕਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ THC ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਹੈ। THC is directly related to onset of schizophrenia and THC is directly related to relapse of schizophrenia। ये medication बंद करनी ही नुकसानदेह है पर सब तो ज़्यादा नुकसानदेह आजकल THC which is being legally weed and marijuana whatever you say is being used।
ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਸ 1 ਡੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਇੰਜੂਰੀਅਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਨੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਸੁਖਰਾਜ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਦ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਾਪਿਨ ਇੱਕ ਵੰਡਰ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਰੈਸਪੈਰੀਡੋਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਰੀਪਰਾਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਪੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਆਓ ਜੀ ਲੇਟੋ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡਿਸਕਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਲੋਜ਼ਾਪਿਨ, ਰਾਈਟ, ਐਲਫਾਪਿਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਮਿਰੇਕਲਸ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ if taken under the supervision of doctor. 100% makes a person better than normal. And ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ I would like to tell you ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। This is paliperidol, Galvez, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 1 month ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੌਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਫਲੂਐਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਐਫਲੂਐਂਟ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਨਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ I would like to show you ਕਿ ਜਿਹੜੀ cannabinoid ਹੈ, this is what we are doing ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ THC ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਟ there is other part of it ਕਿ cannabinoids ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਇਨੈਪਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਐਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਿਊਰੋ ਨਾਟ ਮੀ ਨਿਊਰੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। We have RTMS machine which can take care of auditory hallucination and delusions within few days. RTMS we have with us. We have brain biofeedback ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। So now you see how much we are doing. We are doing vocational training, as you know. ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, they have once gone through some problem and now they are recovered and now they are supporting me. So that big is my biggest support system is my students or ex-patients who don't contributing to my success. 135 people all working towards it and we are not ashamed of it. It's okay. They are the best people, they are the sincerest and they are the most hardworking and they are the most trustworthy people. Then the sport group, you see Mind Spa, Young Minds Clinic, we have gone into every venture. And the next is going to be from September, we are creating a mother-child clinic where the postpartum mothers can be kept because they become dangerous to their children and children are not safe with the mothers. And we are creating some cell over here where the mother and the child can be treated at the same time, keeping the child and the mother connection alive. That's going to be, I don't think India is doing anywhere. So we are creating from September. We'll call you again. Then this sport group, this is the most important. What cannot be treated individually can be created. And this sport group is the one, they have created their own network that they are
solving problems of each and everyone because they have themselves gone through all that. And what they are storing, ki kar ki rahe hai? They are recreating a human connection which our patients have lost. So we have got connected to mobiles, we have got connected to internet, we have got connected to everything, but we have disconnected from the human connection. And I don't think we have a human connection establishing academy anywhere. Not even college institute. We are the one who are creating human connection. And the one thing we are providing, which Namrata was saying, what we are doing as a society, Mind Spa society, we are providing them safety. There are a number of places we have where the patients and their families can be kept because the families themselves can commit some crime, suicide or anything, they can harm themselves. So we provide, my team, Mind Spa, they provide a safety network. And the one thing which we create over here is respect and regard. That is the most important ingredient, respect and regard. That is our society has to learn. We are not embedded with it. We are into circumstances and then we revolt. And then listening, we say communication is very important, but we need to learn to listen and active listening. We might say it many times. We have a training program where we can teach any of you who wants to learn this communication program because that's the component our patients and mental health needs the most. Active listening, empathetic listening, and listening, communication. Then what we teach the Mind Spa people is to take care of fix yourself before you fix the patient. And self-care is the most important. And that's why we have Karwa Chauth. And we would like to have your help in modeling, and we can have beautiful people if you feel like. So that was the point. I never wanted the commissioners or anybody to be there and you to be there so that our children can live even better life than normal people and they can be the best of people you can ever call. Say, the jedi hai na, carrying clothes and everything, they have exceptional. And we have so many saloon hai hamara, जो patients ही हमारे चला रहे हैं. And don't fix them. Be there. Just be there. Just be there. Our involuntary action is to fix someone who is in problem. Be there and he will fix by himself. And it's we always create an adventure in everything. And that's what everybody is looking. And our treatment is adventure, full of adventure. You can't even imagine how much adventure we have. You have seen the psychodrama. You have seen poetry. We have singing. All my patients are above average intelligent and they can create anything and everything at any point of time without any rehearsal and everything. So we recommend our patients, which is very important that our research has gone in, as Dr. Sneh has told, research. Mother is the one who is does the best of mothering. And we have white diaries. Diaries we prepare over here and we tell our patients and families to write their own diaries and then we read and that is what we go. And if you have a whiteboard at home, just keep on writing whatever is going on. It's very useful. And then we tell them, we don't tell them, but we make them feel that you are not alone. We are all with you. And there are three things which are neuroanatomically very important: consistency, discipline, and life between 4 to 6. And this all is a neuroanatomy. Because apart from behavior, thought, and cognition, there is another thing which is affected very much in our schizophrenic patients is time regulation. They don't understand one after the other or what is half an hour means and what is this time and how to start and end. So this is again, we are creating something which they can ultimately do. So I would just say, I think my message should be celebration, hope. We are not sad. We are in the winning team. And I don't think we have to compete with neurologists, other people to show ourselves that no, psychiatry is something. What psychiatrists can do and my psychologist team can do, not my psychologist, but what mental health can give you
I don't think anywhere you can give. After the end of the day, when you have everything, the one thing you are lacking is the mental health. And we are in coordination with each and every one. Whosoever is working in this field and volunteer to work with us can come over and we can work together. So that's my final message. I'm grateful to you, Ji, that you have come for this purpose because मैंने लगता है कि एक टाइम आएगा when we will be branded, right? So we are branded people, and we need to believe in ourselves that we are branded from inside out, and that is going to make us believe that we are worth this life, and purpose of life is all directed towards. Once we are in this life, we are answerable to ourselves that we are productive, and someone with us is feeling relieved of pain and see the hope in his life. Otherwise, what the society can do, we can't think of it. Thank you. Thank you. नहीं नहीं मैं क्या पॉइंट भूलना जान सर का छोटा करा देते So as you see, ये सब कुछ हमारे बहुत it's very close to our heart, and we know it's been lot of time. Before we go for calling our guest speakers and presenting them with a little souvenir from our side, I would like to invite my friends and colleagues and family support group, Anupudar and Neeru ma'am, to please come here for the vote of thanks. So Anu ma'am is a family counselor and treasure of our society. She's a homemaker, teacher, family counselor. We have Neeru here with us. She's our officer. We are very proud to say, excise and taxation officer. So, and to say, a few words for gratitude. सर सबसे पहले आपका थैंक यू फॉर क्योंकि हम सब उस वाले ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे ब्रांडेड होना इज़ द इन थिंग. आपने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है टू बी द ब्रांडेड वंस. थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई वुड लाइक टू एक्सटेंड a vote of thanks to all our distinguished guests. We, the members of Mindspa Welfare Society, are really grateful for your presence and enthusiasm, which has made this event truly special. Thank you so much. I would also like to extend a heartfelt gratitude to Dr. JPS Bhatia and Dr. Sneh for their valuable insights about schizophrenia. Again, I would like to remind a treatable brain disorder. And then we are truly indebted to the members of Inner Wheel, Vicky Flo, and Fulkari for their gracious presence. And we really look forward to collaborate with all of you and learn in the process. Thank you so much. गुड इवनिंग एवरीवन. एट द एंड ऑफ द इवेंट मैं यही मैसेज दूंगी कि मेंटल डिसऑर्डर्स, ब्रेन डिसऑर्डर्स को डिस्टिग्माइज करना बहुत ज़रूरी सोसाइटी में. लोग अपनी टॉक्सिक शेम की वजह से इसके बारे में बात नहीं करते, ओपनली डिस्कस नहीं करते. तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इसके बारे में बात कीजिए. आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कीजिए, अपनी उस टॉक्सिक शेम से बाहर आके उसको डिस्कस कीजिए. आप सब आए गेस्ट, आप सब सोसाइटी की वॉइस हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे साथ मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि सोसाइटी में जो ये एक टॉक्सिक शेम का है इस चीज़ को लेके वो ख़त्म कर सके, स्टिग्मा जो है उसको ख़त्म कर सके. मुझे लगता है आज बहुत बेस्ट मौका है कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ इस चीज़ की. मेरे अपने हस्बैंड का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है एडिक्शन का. ही इज़ ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई. मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ.
सर ने हम दोनों को बचाया है और हम दोनों बहुत अच्छे से अब जॉब कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी और मैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये अपनी टॉक्सिक शेम से बाहर आके इस चीज़ को मैं शुरुआत करती हूँ आज से। सो प्लीज़ ज्वाइन अस टू मेक दिस प्रोग्राम मोर एंड मोर पावरफुल। Wonderful. Thank you, ma'am. And this event can't be complete. I've already introduced the director, but the most super senior, whom we call the mother psychologist here, Shweta ma'am, to come here, and our one of and again one of the most expert, experienced, compassionate, very popular with couple therapy, working for last 7 years, Aman Saluja ma'am. We understand because she and her husband share a very romantic relationship. By the way, guess what's her age? If you can guess. 60. Sir, please. That's yours. Any guesses? मैंने ऐसे कहा तो आप थोड़ा तो बढ़ा के बोलोगे वैसे मैंने. Yes, anyways. He has, children भी नहीं रहे वो. 26 and 20. Anyways, so we know where she's experienced in couple therapy, and now we know where it is coming from, the romantic relationship she shares with her husband. So all the couples coming here want to go to Aman ma'am for counseling, and she's been doing a wonderful job for last 7 years here. But over to the mom of the show. Thank you so much. Yeah, ma'am, you be here. We have to present the tokens as well. एक्चुअली ना ये मदर वर्ड हमारे पेशेंट से आया है. एवरीबडी कॉल्स मी. वो पहले ना एक पेशेंट होता था छुट्टी के लिए. हमारे पेशेंट जब आते हैं ना, क्योंकि इनसाइट नहीं होती है, छुट्टी के लिए मांगते हैं हमसे परमिशन. तो देयर वाज अ पेशेंट हु ऑलवेज यूज्ड टू से, तू मेरी मम्मी वर्गी है, मम्मी 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 प्लीज मैंने छुट्टी करा दे, प्लीज मैंने छुट्टी करा दे. सो वहां से ये वर्ड आया है. तो ये अब मदर हो गया. बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग. ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है और डॉक्टर साहब की कितने सालों से हमारा डॉक्टर साहब कर रहे हैं अवेयरनेस. व्हाई वी आर हियर फॉर अवेयरनेस. एंड ये अवेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट है. अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी तो हम कभी भी सीख नहीं. वी ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम बट वी आर नॉट सोल्यूशन ओरिएंटेड. हम हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड रह जाते हैं. हम प्रॉब्लम की बात करते रहते हैं पर सोल्यूशन की बात नहीं करते. एंड अभी सर ने बीच में एक टर्म यूज करी थी, अर्ली इंटरवेंशन. अर्ली इंटरवेंशन इन द सेंस, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बात करी जा रही है, प्रीडोम स्किज़ोफ्रेनिया एक टर्म होती है. हमने 13 इयर्स की एज में भी सिम्टम्स आते देखे हैं. दैट इज प्रीडोम स्किज़ोफ्रेनिया. एंड वी ऑल, इवन आई एम अ पेरेंट, so we being parents of the society, we have to be very careful कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं. एंड बिहेवियर इज द वन थिंग विच टेल्स अस एवरीथिंग. बिहेवियर जो हमें होता है, पेशेंट जो हमारे दिखाते हैं, बच्चे अगर आपको किसी भी एज में ब्लेम करना शुरू कर दें, आपसे इरिटेबल रहना शुरू कर दें, आपको ये ब्लेम करे, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने मुझे उस टाइम पे वो स्ट्रीम नहीं लेने दी जो मैं लेना चाहता था या लेना चाहती थी, या वो आपके साथ इरिटेबल हो रहे हैं, बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, अलूफ रहना शुरू हो गए, अकेले रहना शुरू हो गए, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन. हमारी प्रॉब्लम है, जैसे सर ने कहा, वी ऑल आर ऑलमोस्ट 10 years लेट. अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है आपको कोई भी बिहेवियर 7 days लग रहा है, 5 days लग रहा है, कंसिस्टेंट चल रहा है. मे बी आपका बच्चा चुप है, उदास है, आपका बच्चा बात नहीं कर रहा, या ओवर एक्सप्रेसिव हो गया, ज्यादा बातें करनी शुरू हो गया, या इरिटेबल हो गया है किसी भी कारण से, you immediately have to reach out to the mental health expert. These are the telltale signs. Yeah, and it's not necessary that every patient needs medication. अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो शायद थेरेपी से ठीक हो जाए. एंड many years back it was said that स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कोई भी साइकोथेरेपी काम नहीं करती. बहुत साल पहले ये कहा जाता था
कि बाकी डिप्रेशन में आप थेरेपी कर सकते हो, आप एंजाइटी में थेरेपी कर सकते हो, पर स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें थेरेपी वर्क नहीं करती, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। स्किज़ोफ्रेनिया में भी थेरेपी वर्क करती है, और जब इंसाइट आ जाती है टुवर्ड्स द डिजीज, एंड जैसे सर ने कहा, इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे पेशेंट्स, इतनी ब्यूटीफुली ठीक होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल होते हैं। We have n number of patients who were diagnosed with schizophrenia and they are living their life wonderfully. Wonderfully, they are doing their all the jobs. Married with children, this is very much important. We have 4-5 schizophrenic patients who were average in studies, but they are married to doctors. You can't imagine. And they are having kids also. बिकॉज एक ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा में हमें हमेशा फैमिली पूछती है, अगर हमने ये बता दिया कि स्किज़ोफ्रेनिया है तो शादी नहीं होगी बिल्कुल भी। हम उनको कहते हैं अगर आपने ये बता दिया स्किज़ोफ्रेनिया और वो ट्रीटमेंट में है, तो आप उस बंदे से शादी करोगे जो आपको समझ सकता है और वो आपको पूरी जिंदगी हेल्प करेगा इन द ट्रीटमेंट। सो इट इज रियली अमेजिंग। 4-5 स्किज़ोफ्रेनिक जो हमारे रिसेंट पेशेंट चल रहे हैं, दे आर मैरिड टू डेंटिस्ट डॉक्टर्स, एंड those doctors are taking very good care of their patients. So any mental disorder is like other disorders. अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, जब हम शादी करते हैं हम ये पूछते हैं आपको डायबिटीज है कि नहीं, आर यू डायबिटिक? शादी के बाद पता लगता है डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, थायराइड भी है। कभी टेवा मिलाते हैं, या हम जो मैट्रिमोनी करते हैं उसमें ये तो नहीं पूछते आपको थायराइड तो नहीं, आपको ये तो नहीं, आपको वो तो नहीं है। ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ जो start with the new astrologers club also. हमारी मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे बॉडी का पार्ट है। सो हम इस अपनी प्रॉब्लम को, मेंटल हेल्थ इश्यूज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें एंड टाइमली इंटरवीन करें, ताकि हमारी जो डिसऑर्डर्स में ट्रांसफॉर्म ना हो। थैंक यू जी। Thank you so much. So, no, ma'am, but just 5 minutes more. 5 minutes more. 5 minutes more. We have a few, little bites also for you. So I invite the heads, of. Okay, ma'am. One word. Give me 1 second. I just want to say, as mother of a schizophrenic patient, Yeah, that's Dr. my Abhi's son is mother. Dr. Abhi Silwan. There is only one word that encompasses this whole therapy, this whole treatment, and that is acceptance. Yes. Once you come into acceptance, everything falls into place. Falls into एक ही चीज आनी चाहिए, acceptance, acceptance and acceptance. Then after that, things become very easy. This is my experience as a caregiver, and I think this is for everybody. For everyone. Most important. You gave the most important message. Yes. Sure, ma'am. वो हमारे साथ हैं. ही इज फ्रॉम दिल्ली, बट ही इज पैरानॉइड सिक्सोफेनिया. Okay. सो वो हमारे साथ रह रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है. Okay. उनका लुक आफ्टर हम खुद कर रहे हैं सारा. Wonderful. सो आई थिंक आई एम सॉरी, बट जैसे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे लगा आप जाने के लिए उठ रहे हो, इसलिए नहीं सॉरी, वो तो घर से फोन आ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, बट इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये, और जिस तरह से जो एपिसोड आ रहे हैं वो मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ कि किस तरह से हमने उनको हैंडल किया है, सब चीजें उनकी. बहुत बढ़िया. एक एपिसोड जिस तरह उनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो वॉइसेस आ रही हैं, वो हर चीज You must be able to relate today. Of course, बिल्कुल. Wonderful. Thanks for sharing, ma'am. Thank you. So I would like to invite Aman ma'am, Shweta ma'am, sir, to please call the torch bearers. Head of Fiki Flow, Mona ma'am, please आइए. Head of Inner Wheel, who's present here, Meenakshi ma'am from Fulkari. Shweta ma'am, Didi ma'am. Anchal ma'am, please join. You. Yes. If any message, any sharing you want, please, yes. You would like to say? Yes. I'll just take a minute. Ma'am, please. I'll just take a minute to thank everyone. Whatever was, spoken here from the authorities, from the doctors, from the man himself,
and people who have taken that courage to came here and they have spoken on this. I am a healer and a spiritual guide, so I get to meet a lot of people. And day before yesterday, we did a very beautiful meditation event. So one statement which I made there was, from meditation to medication, or maybe from medication to meditation. Whatever it requires, we are all there to help. Yeah. And you should seek help, because if you want to get cured, it's not only for the patients, but it is also for the caretakers, that you also need to get that strength, the divine interventions, and of course, medicines. And they have human their own intervention. yes, the doctors, the right doctors' interventions are there. And sir, I really assure you, for whatever time I'm here as a chair, and after that also, I'm always a call away. Whatever it takes, we are there for this, because I totally believe in one thing, that we all have the right to live happily, and happiness only is not that I am happy. When we make others happy, we are either more happier. Yeah. So be a giver than a taker, be a seeker, and in that seeking is not only meditation, but even a doctor can really, in a right way help us. So they are also the angels sent by God, I always say. So thank you so much. We have a man who really understands, believe, and feel the pain of everyone. So, sir, honestly, it's a privilege to be here for those 3 hours, and so much enlightenment is here. I always wanted to be a psychologist or a psychiatrist, but wo hi na, knowledge nahi thi, sir. But it I just think happened. My niece is here, so I think that beautiful psychiatrist or psychologist, so I asked whatever my you are doing is the best one. Thank you. So that So- is also a part of making people Yes. feel happy about yes. themselves. So my niece was there and she's like, Masi, what do I do? I said, see, I would love to be one of them, but I couldn't do that at that time. And she took that initiative and she's here. So anyway, you can use her. I'll be more than happy. And I'm Anytime. also here. So it's not that it's a, yes. We will be here for counseling, for the group sessions, for whatever you needed. Flow is there. Because I'm the chair this year, I will make sure my girls are here. Thank you, my Flow family, to be here. And even I. Thank you so much, each one of you. It's such a beautiful evening we had. Thank you. God bless all of you. Stay strong, and we are all in this together.